Hello everybody, Assalamu alaikum. As promised, I am here live for Dino, with Dino. I was earlier speaking to him on his account, and now we decided, because live apparently सिर्फ 45 minutes के लिए होता है, so we decided to shift this entire conversation here on my account. We are talking about mental health awareness today, and I shared my experience with mental health problems. Dino shared his journey, and I think we've had a very good conversation. A lot of you came through, spoke about everything that you guys want to speak about. I think ab yahan par we're going to have a lot of traffic come here, so filhal I'm going to wait for Dino, and meanwhile I'm going to talk to all of you guys. I love you too, Zara _obsessed. Thank you so much. I really want to thank everybody who likes me, supports me, who enjoys my work, who doesn't enjoy my work. Everybody, thank you so much for being around. Thank you for being kind. Oh yeah, and yes, Dino is here. And we're gonna speak to Dino. Yes. Okay. What's up? Hello. Hi. I'm back. I just gave a little review to everybody कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे. We spoke about your journey and my journey, and now I want to shift to the point where I wanted to ask you, Dino, कि अब क्या करना है? यार अब मतलब in generally in life कि अब क्या करना है? Is that what you're asking? अब उन लोगों के लिए क्या करना है जो हमारी जो मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं समझते, और हमें लोगों को कैसे अवेयर करना चाहिए, और लोगों को अपने आप को और दूसरों को कैसे अवेयर करना चाहिए? यार, I just want to say one thing before I say anything about that is कि यार, you know, a lot of people will say कि, and they say this, a lot of people say कि जी आप पब्लिक फिगर हैं, आपको इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए. फिर जब आप इस चीज के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी आप एक्सपर्ट तो नहीं है, आप इस चीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या बात हुई? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं और ज़ारा we're not experts, but we can talk about this subject because we have been through something like this, and we have been through a situation where we were lucky enough to be able to survive you know, a portion, alhamdulillah, of a portion of our life where we've seen people like Chris Cornell, you know, Chester Bennington. There are so many famous celebrities, you know, Caroline Flack, Heath Ledger, Caroline Flack, जो कि अभी हाल ही में रूही बानो, you know, कितने लोग हैं, इतने famous लोग जो मेरे और ज़ारा की तरह, they must, maybe that it was more severe for them, but they went through a similar thing. But they aren't here with us today. So we are talking about it not as a perspective कि जी जो लोग हमें देख रहे हैं कि भाई हम expert opinion के हिसाब से तो बात ही नहीं कर रहे. We're trying to talk to you so it's easy for you to talk about it. जो लोग देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी आपस में एक दूसरे से इस तरह बात करें, दोस्तों से, जिस तरह मैं और ज़ारा एक दूसरे से बात कर रहे हैं. किसी दोस्त को फोन करें, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करें. You know, मेरा दोस्त है जिसने मुझे रिसेंटली कॉल करके कहा यार मैं इतने दिनों से इतना डाउन हुआ हूँ, तूने मुझे कॉल नहीं की. अब मुझे ये फील हुआ कि हाँ यार बात तो ये सही कह रहा है. आई शुड कॉल अप माय फ्रेंड्स एंड आस्क देम कि वो कैसे हैं, क्या है. किसी दोस्त, अगर आप दोस्तों से नहीं बात कर सकते, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बात करना चाहते किसी से, तो आई थिंक it is very important to talk to a psychiatrist or a therapist. Yeah, or there's nothing wrong with that. There's nothing wrong in going to seek medical health. Yeah. Medical help, because I think medical help की वजह से सबसे safest तरीका ये होता है, एक तो आपकी information कभी किसी के पास बाहर नहीं जाती, तो आपका वो नंबर 1 डर गायब हो गया. हाँ, कि confidential है. हाँ. Confidential है. दूसरी बात, वो हमेशा आपको biologically, physically, मेंटली उस बात की रीजनिंग देकर आपको समझाएंगे कि आपका इशू है कि नहीं है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि ये डिप्रेशन है, लेकिन वो डिप्रेशन नहीं होता, वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस होती है जो किसी के जाने के बाद होती है या किसी एक अकरेंस पे होती है. बट कभी कभी जब वो
कांस्टेंट स्टेट भी इतना कांस्टेंट हो जाए कि आपका कुछ करने को दिल ना करे, आपके डेली लाइफ की चीजों में से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, तो फिर इट इज अ वेरी वरीसम थिंग. I was also reading up on the fact कि I didn't know कि मिलेनियल बर्नआउट की वजह से पाकिस्तान में डेथ रेट इंक्रीज हो गया है, सुसाइड रेट इंक्रीज हो गया है. Really, I didn't know that. Yes, the burnout of the millennials due to social media, Instagram, TikTok, और वो जो एक था डब स्मैश. I didn't know कि उसकी वजह से हमारी जो जुवेनाइल्स हैं, जो यंग लोग हैं जिनको नहीं पता चल रहा, ऑब्वियसली क्योंकि वो यंग होते हैं, वो प्रोसेस में होते हैं, उनको नहीं पता सही और गलत के बीच में इतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उन लोगों ने कितने सुसाइड किया. सुसाइड रेट हमारे मुल्क में इतना ज्यादा बढ़ गया है. और अभी भी आई वाज रीडिंग अप ऑन द थिंग्स दैट यू नो कि बस सिर्फ 36 कि सिर्फ 5 मेंटल असाइलम्स हैं पूरे मुल्क में, यू नो, सिर्फ 5. ये तो आपने मुझे जो स्टैट बताया, आई एम वेरी सैड टू हियर इट. 5 मेंटल असाइलम्स इन द होल कंट्री इज it's very sad. That's very sad. And 36% of the population suffers through anxiety and depression. 50 million people in Pakistan. 36%, मतलब इतने ज्यादा लोग. और मैं पढ़ रही थी, I didn't know कि हमारी हर साल जो मर्दों की रेट है सुसाइड की, वो औरतों से ज्यादा है, क्योंकि मर्दों की जो कंडीशनिंग है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप नहीं रुक सकते. मर्द को कभी दर्द नहीं होता. मर्द को दर्द नहीं होता. हाँ, आप रो नहीं सकते, रोने की क्या जरूरत है, पागल हो गए तो मर्द हो, you know. और ये सब चीजें हमारी सोसाइटी ने क्रिएट की नहीं है. Totally. None of this is given us by the book or around globally in the world. So why is it that we as a nation are not understanding this problem? हम लोग क्यों कॉन्स्टेंटली लोगों को डिमीन कर रहे हैं, और हम क्यों कर रहे हैं? और हमारे मुल्क में अगर, like I said in your live, I would like to repeat here, कि अगर कोई अपनी स्टोरी बताता है, चाहे वो मी टू की स्टोरी हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ की स्टोरी हो, चाहे वो अपने पर गुजरा हुआ कोई भी ऐसा मौका हो या वाकया हो जो लोग बताना चाहते हैं, उसके ऊपर why does everybody want to make fun out of them? Because it's easier. It's easier to understand like that. People don't want to go to the depths of understanding someone's problem. लोगों के लिए आसान ही होता है कि यार मजाक में उड़ा ली चीज, मजाक बना दिया इस चीज का. लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि अगले के लिए बड़ा सीरियस मसला हो सकता है. You know what I mean? Like कि अगर इसी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं. लोग बाहर ही नहीं आते अपनी स्टोरी के साथ. लोग सैडली लोग जान ले लेते हैं अपनी. लोगों से मिलना बंद कर देते हैं. लोगों के वो चीज जो है वो उनके प्रोफेशनल लाइफ में स्पिल हो जाती है, तो उनकी जो मोटिवेशन होती है कुछ चीज करने की वो खराब हो जाती है. वो अपनी जिंदगी में अगर कुछ बेहतर कर सकते थे या कुछ बन सकते थे, वो नहीं बन पाते. क्योंकि आप जो है, मतलब आई नो कि मुझे कितना डिस्करेज लोगों ने किया है. इफ आई हैव शेयर्ड समथिंग दैट आई वांटेड टू डू, नॉट बिकॉज दैट दे डिडंट बिलीव कि आई कुड डू इट, बट बिकॉज it was easy for them to just be like, खैर है, अबे पागल हो गए, क्या जरूरत है. You know what I mean? Like ये जो dismissiveness है ना, ये असल मसला है. आप जो हम लोग dismiss करते हैं ना अगले का issue, वो बड़ा issue होता है. क्योंकि लोग ना आपको, अब जैसे हम बात कर रहे थे, जो हम बात कर रहे हैं about, कि you are somewhere or I am somewhere and all of a sudden I am unable to breathe or I'm panicking and someone around me is, saying कि यार तेरी जैसे आपने कहा कि सब आपको लगता है शायद नींद पूरी नहीं हुई, या oh my god यार खैर है, are you okay, like what's wrong, okay, something happened, just somebody say anything. It's not about somebody saying anything, dude. It is a problem. You need to get deeper into it and understand it. जैसे अभी मैं यहाँ पे हमारे पास मैंने एक आज चीज पढ़ी थी कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए लोगों से who are going through mental health awareness, Please say address करें उनको. जैसे 7 questions, ये जो है, ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था. This is by Healthline. उन्होंने लिखा है, और ये this was reviewed by a doctor, Timothy J. Legg, जो कि एक PhD है, psych ed है, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए एक इंसान से who is suffering from mental health survivor, right? Yeah, to a mental health survivor or someone who's dealing with depression.
जैसे 7 questions to figure out the impact of the symptoms. पहले तो आप 7 ऐसे सवाल हैं पहले तो आप मुझे बताएं कि सिम्टम्स का पता करने के लिए हमें लोगों से या लोगों को आपस में क्या सवाल करने चाहिए? जैसे नॉर्मल सवाल आप कर सकते हैं कि आर यू स्लीपिंग मोर और लेस और हाउ यू नॉर्मली डू, you know, are you eating more or less than you normally do, are you tasting the food when you eat, you know, do you feel does that mean कि taste buds भी खराब हो जाते हैं? हाँ, कभी कभार होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं, आपको फील भी नहीं हो रहा था कि आप कुछ खा रहे हैं। आप मेरे साथ ऐसा हुआ था कि sometimes I would just eat because I'm eating, I wouldn't eat because I'm enjoying the taste of it or anything like that, you know। तो आपको different चीजें होती हैं आपके साथ, जैसे do you feel tired no matter how much you sleep, you know, are you capable of enjoying things right now, you know, is it hard for you to personally groom yourself, मतलब do you want to look better, do you want to look good, are you having thoughts of your own, like ये जो सबसे ये वाला point जो था ना, this is where you will realize how serious this is, are you having thoughts of your own death, क्योंकि जो मैंने आपको अपने live में बताया था कि मुझे ये बात serious तब लगी थी कि I was suffering from, you know, depression was when I started thinking about the end of my life। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो आप you know, आपको पूछनी चाहिए, सवालात पूछने चाहिए। और आप बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं, you know, these are questions to encourage self care, you know, there's self education, इसमें लिखा हुआ है self education and self care are both vital to successfully helping care for and foster healthy relationships with your partner or yourself during depression। अब जैसे questions हैं, you know, you can talk to each, अगर आपके मिसाल के तौर पे आपकी कोई पार्टनर है तो आप एक दूसरे से ये सवाल पूछ सकते हैं कि you know, are you drinking or using drugs to cope with stress, are you exercising daily, these are questions you should, you know, ask yourself or your partner। okay, are you eating well, you know, आपको अपने आप से ही पूछना चाहिए कि यार मैं am I और eating इसमें well? ये भी होता है कि या आप ज्यादा खाते हैं या आप बहुत कम खाते हैं। Exactly, या तो आप स्ट्रेस नहीं होता होती है। हाँ बिल्कुल, जैसे are you experiencing any physical symptoms like headaches, insomnia, digestive issues, do you have you think migraines could also be a symptom of I don't know, this is, I mean, यहाँ पे जो लिखा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, but I'm sure people have different symptoms they can discuss, you know, there must be people जिन्होंने मुख्तलिफ चीजें फेस की होंगी। जैसे ये है, इसमें एक और चीज लिखी है, do you have people you can talk to or understand what you're going through, this is a question you should ask yourself, you know। हम लोग ये अपने आपसे सवाल नहीं पूछते, where can you locate resources to help you, इस तरह की चीजें। so there are things you should ask yourself, there are things that people shouldn't ask you, like जैसे हम लोग कहते हैं ना, अब जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीलिंग विद डिप्रेशन, ये भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, APA एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में हु डील विद मेंटल हेल्थ, और उनकी एक बड़ी फेमस डॉक्टर है जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्स प्रेसिडेंट भी थी। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी रियली बैड फॉर समवन डीलिंग विद मेंटल हेल्थ, फॉर डीलिंग विद डिप्रेशन और एंजाइटी। जैसे कि suffering is something you should never say when someone says कि जी I'm suffering, that के oh this person is suffering from depression, because suffering implies that this person is unable to, you know, is going through some situation where he is unable to get over it, or he's going to suffer from it. He's dealing with it, yes, but suffering is a much more harsher term। जैसे लोग कहते हैं कि जी मतलब उनका ये भी कहना था कि committed suicide or trying to commit suicide, it means that person is trying to commit to this act or trying to, you know, have a, you know, it's a crime or something, you know, like इस तरह की चीजें लोग अगर रिसर्च करें, जैसे आज मैंने बहुत रिसर्च की इस चीज के बारे में, तो जो जब रिसर्च करें इस चीज के बारे में तो उनको एहसास होगा कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी कहते हैं और करते हैं which are not the right thing to do, you know what I mean? जो इसके साथ टैबू क्रिएट हुआ हुआ है, जो एसोसिएट हुआ हुआ है इसके साथ, एक बहुत बड़ा टैबू है हमारी सोसाइटी में, वो इसी तरह का टैबू है जैसे डिवोर्स के साथ होता है, या जैसे आई थिंक उस इंसान के साथ होता है, या जिसकी आई थिंक जॉब भी अगर किसी की खत्म हो जाए, किसी मर्द की स्पेशली जॉब खत्म हो जाए और उसकी बीवी कमा रही हो, तो वो जो टैबू उस चीज के साथ क्रिएट है, उसी तरह का एक ये बहुत बड़ा टैबू है कि मेंटल हेल्थ
किसी को अगर पता चल जाए कि किसी के साथ दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, तो उनका बहुत बड़ा इशू है। मतलब वो आप खानदान में नहीं बता सकते, आपकी शर्मिंदगी होगी, आप दोस्तों में नहीं बता सकते, और उस टैबू की वजह से आई थिंक हम बहुत सारे अपनी चीजों को एड्रेस ही नहीं कर पाते, इवन विद इन आवरसेल्फ। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इंसोम्निया है, लेकिन उनके अम्मी अब्बू उनको डांटते हैं कि रात को सोता नहीं है। रात को सोता नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है, या सोती नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर रात को इंसान नहीं सो रहा, उसका स्लीपिंग पैटर्न खराब है, सो दिस इज अ प्रॉपर प्रॉब्लम. Also, I'd like to address that mental health is very different from a neurotical disorder. Yes, of course. And every disorder has a different symptom. For example, bipolar disease के साथ उसका एक different symptom है. Autism के साथ उसका एक different symptom है. ये सारे mental health, anxiety, stress कि जो हम symptoms बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये होता हो. बहुत ज्यादा लोग जो हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको ज्यादा नींद क्यों आ रही है, या उनको कम भूख क्यों लगी, या ज्यादा क्यों खा रहे हैं. लोग कहते हैं ना खुश हुआ हुआ तो ज्यादा खा रहे हैं. नहीं, sometimes it can also be a disorder. Of course. तो ये everything बहुत has an issue. Yes, और कभी कभी कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं डीनो कि उनको लोगों की बातों, इंट्रोवर्ट्स स्पेशली, एक्सट्रोवर्ट्स भी, बट स्पेशली इंट्रोवर्ट्स, क्योंकि वो ज्यादा खुल के दुनिया के सामने नहीं आते, तो उनको कभी कभी कुछ लोगों की बातों से बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है सब कुछ. तो आई थिंक to overcome all of this, to overcome, we've clarified कि डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है, एकदम से होता है, कभी कभी चाइल्डहुड से प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी आपकी जवानी से प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी आपके टेम्पररी प्रॉब्लम्स की वजह से वो क्रीप अप करता है. आपको नहीं पता डिप्रेशन का असल रीजन क्या है. वो आज तक दुनिया में बैठकर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. तो अपनी जजमेंट सबसे पहले तो उसके बारे में नहीं बनाए. दूसरी बात कि अब डिप्रेशन अगर आपने डायग्नोज आपने करवा लिया अपने आप को, और आप थेरेपी ले रहे हैं, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो फिर क्या करना है? अपने लिए क्या करना है? अपने लिए ये करना है, लाइक वी डिस्कस्ड इन योर लाइव सेशन 2, दैट वी नीड टू बी वेरी ओपन टू लविंग आवरसेल्व्स. एब्सोल्युटली. ये तो एक्सेप्ट कि एक अगर फॉर एग्जांपल कोई गलती हो गई आपसे, या आपने किसी को कुछ कह दिया, आप उस बात पे बैठ के सल्क करते जा रहे हैं मैंने क्या किया, या आपके ग्रेड्स नहीं अच्छा है. बहुत सारे बच्चे अपने ग्रेड्स ना अच्छे आने की वजह से अपने माँ बाप से एड्रेस ही नहीं कर पाते कि हम क्या फील कर रहे हैं. एक तो जनरेशन गैप की वजह से, आपकी कॉन्वर्सेशन के गैप की वजह से बच्चा और माँ बाप में एक ऐसी चीज आ जाती है, वो अपने गिल्ट में होता है, माँ बाप उस गिल्ट में होता है कि पता नहीं हमने सही पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ाया, हमने सही परवरिश की है नहीं की. उस वजह से बहुत सारे गैप्स की वजह से आप एड्रेस नहीं कर पाते. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप कभी भी कुछ फील कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, या कोई स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, मैथमेटिशियंस की प्रॉब्लम्स हैं, या अब खाने का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, you need to go and tell the person who's next to you, whether Absolutely. It's your husband, your wife, your family, your kids. These days हमें पता ही नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से इतने सारे बच्चे घर में बैठ के होम स्कूल हुए हैं, उनका सारा सिस्टम हिल गया है. बच्चों के अंदर एक बहुत मेजर सेटबैक हुआ है बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि उनको पता ही नहीं है कि ये क्या जिंदगी है, और आप बच्चों से इतनी डिबेट तो कर नहीं सकते. तो उनको पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है. सो उन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना, सबसे पहली चीज है कि आप कॉन्वर्सेशन क्रिएट करें. दूसरी चीज है कि अपने आप को फॉरगिव करें. अपनी जो भी प्रॉब्लम है, आप या किसी और की वजह से आप अपने आप को अगर कोई वो दे रहे हैं सजा, उसको फॉरगिव करें, अपने आप को उसके लिए फॉरगिव करें. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आई थिंक है, ना गलत सुने ना गलत बोले. आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं. इस तरह की इंफॉर्मेशन से अपने आप को दूर रखें, या इस तरह के लोगों से अपने आप को दूर रखें जो आपकी जिंदगी में टॉक्सिसिटी का रेंज ज्यादा करते हैं. How do you manage to do that? I mean, because you are you're a socializing person, and because you like me, you're a sensitive person. How do you deal with this sort of thing? How do you block that out? Like, apna bataएं तरीका.
What would I Zara have, do? to be very honest, I've stopped meeting a lot of people. Really? Yeah, Isn't I that feel part like, of our job though? Like I know, okay, like I don't, but like, but isn't that that part of? I keep that as work related only. जब मैं काम Okay. पे जा रही हूँ, तो that is just my work. That is, and actually I enjoy working. My technicians, everybody who's around me, all of them, I love working with them. Same. And with them, it's just work. But जो मेरा one-on-one time है, like after 10 p.m. when I'm back home from a 12-hour shift, I want to sit home with my family, with my in-laws, and speak on the phone with my other family, and very, very, few friends. I think just handful, literally handful, जिनसे I'd like to discuss about what I'm feeling. And I think जितना जितना आप जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको पता चलता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है. Oh my God, yes. आप बस फिर उन्हीं को चूज कर लेते हैं, उन्हीं को पिक कर लेते हैं जिनका आपको लगता है कि ये मेरे साथ चल पड़ेंगे. एंड आई हैव started reading books. I think books में और खतों में Books are amazing. कोई एक ऐसी बात है जो ऐसा ठहराव है जो आपकी जिंदगी में आता है. वो चीज मुझे बहुत बहुत मुझे हेल्प किया. एंड I started reading Quran. मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रॉपर्ली कुरान पढ़ना शुरू किया. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें बहुत हीलिंग पावर है. just holding that book has a lot of healing power. मेरे लिए I think when I was going through my rough patch, I think मेरे लिए जो सबसे I recommend this to everyone. और जो लोग देख रहे हैं, मतलब obviously you can talk to a psychiatrist, you can talk to a therapist, you can talk to your friends and family and all of that. लेकिन मैं सबको एक टिप दूंगा. मैंने ये किया और मुझे लगता है, और आज भी मैं करता हूँ every day. सूरह रहमान जो है, आप YouTube पे सूरह रहमान जो है, I think अल-मिश्री नाम के एक है साहब जिनकी आवाज में मैं सुनता हूँ. वैसे तो आप किसी की भी आवाज में सुन सकते हैं, लेकिन सूरह रहमान जो है, it's about 10 to 15 minutes long. आप हेडफोन्स लगाएं, रोज रात बैठें, जब आप सारी अपने जितने भी जिंदगी के काम है आपके, जब आप कर लें, तो रात में बैठें, सूरह रहमान अपने हेडफोन्स पे लगाएं, बैठें और सुने. और उसके बाद सुनने के बाद आप पानी पिएं और अल्लाह का शुक्र करें. मैं आपको बता रहा हूँ, because it changed my life, dude. I can't even tell you. Like I do this. I've been doing this religiously for the last 4 years now, and it's changed my life. Yeah, every day without fail. And मैं जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, मैं कहता हूँ यार कि it's beautiful, or it really calming. Do you feel like that there is a certain sort of an energy that you Absolutely get out of all of these verses from the Quran? Absolutely, dude. मुझे याद है जब मैं an immense energy that comes out, and that there's this vibe in the air and the atmosphere that cleans everything. It does. It cleans your soul, dude. मुझे याद है मैं जब initially जब panic attacks और इस तरह की चीजें होती थी, और मैं रात को बैठ के जब सूरह रहमान सुनता था, तो माशाल्लाह I remember I could feel my body जो इतनी tense, और मेरे जो एक knots बिल्कुल यहाँ in the back of my shoulder, and I used to feel really कि जैसे कोई एक weight जो है मुझसे literally उठाया जा रहा है. I'm not kidding. And I know this sounds very, ये बड़ा फिल्मी लगेगा लोगों को, लेकिन मैं ये फिल्मी बिल्कुल नहीं है. This is absolutely correct. I used to feel कि मेरे ऊपर से एक weight lift हो रहा है, और मेरी जो यहाँ, because जब आप बहुत ज़्यादा extreme stress पे होते हैं, तो especially the back of your shoulder, you feel these very, intense pains and knots, अजीब किस्म के, this area especially. तो मुझे हो जाता है सब. और मुझे I remember कि मुझे जब मैं initial days में जब उसको मैंने सुनना शुरू किया सूरह रहमान को, तो मुझे यहाँ से I used to start feeling कि there's just something there, someone just telling me it's okay, it's going to be all right. And it was. 4 years later, it's all right. I'm okay now. Sure, I have it never leaves you. आप अगर एक चीज, जब आपका एक जिंदगी में एक breakdown हो, या आपको ऐसी कोई
तकलीफ हो, दिमागी तौर की तकलीफ ऐसी इस तरह की कोई हो, तो कभी कभार आपको फील होता है कि यार यू नो आई फील सर्टेन सिचुएशंस में आई फील दैट डिप, कि जिसके अंदर मुझे फील होता है कि यार I'm going back to that. लेकिन to what I was and compared to what I am now, आसमान ज़मीन का फर्क है dude. Alhamdulillah. I'm not even kidding. So there's so many ways you can fix yourself, and there's so many ways that you can do. I think इसमें ये भी बात है कि you should be able to forgive everybody. Yeah, totally. I'm with you. I'm walking around, so don't freak out. It's okay. You should be able to forgive everybody. You should be able to, जिसने आपको लगता है किसी ने अगर आपको दुख दिया है या आपको लगता है कि किसी ने कोई एक ऐसी बात की है जो आपको बहुत बुरी लगी, या कोई ऐसी खानदान में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो, उस इंसान को forgive करते हैं. उस बर्डन को जब आप लिफ्ट करेंगे अपने ऊपर से, उस बर्डन को जब आप लिफ्ट करेंगे, I feel like that is going to heal you as well. Dude, पता है expectations मार देती हैं. मैं आपको बताऊं, expectations जो होती है ना, हजरत अली का कॉल है कि किसी से expectation ना रखो. You know what I mean? एक expectations जो होती है ना, अब आप expect कर रहे होते हैं ना किसी से कुछ. That is the core essence of something that really, that disappointment is what actually hurts you the most. अब मैं 2 दिन पहले मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैं उस दोस्त को भी यही बात समझा रहा था कि यार मैं जो ना पिछले 4 साल से जो मेरे में जो सबसे बड़ा चेंज आया है कि मैं एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे किसी से भी नहीं. मुझे कोई किसी इंसान से nobody. I have no expectations from anyone. I only pray to God that God, you know, takes care of me, my family, you know, forgives me for my sins, you know, all of those things. I because obviously आप अल्लाह से एक्सपेक्ट करते हैं कि कि आप दुआ कर रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आपकी दुआ पूरी हो जाए एंड एवरीथिंग. बट लोगों से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मतलब कि यार चलो मैं अगर प्यार दे रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्यार तो वापस मिलेगा. ये एक्सपेक्टेशन आपको होती है थोड़ी सी कि यार चलो मैं किसी को प्यार दे रहा हूँ तो प्यार आगे से मिलेगा, मैं किसी को हंसा रहा हूँ तो चलो वो खुश हो जाएगा, मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मे बी दे माइट बी थैंकफुल. बट कोई मुझे उस तरह की लेकिन मुझे उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसने 100% मेरे लिए कुछ करना है in return. Yeah, which is great. I think which is great. जिसकी वजह से you can go a long way in your life, realizing that I can do good to everybody and it's okay if nobody does good to me. It's fine, okay. dude. It's fine. Yeah. And also the biggest thing, you gotta let go. You've got totally. To let go. Everything totally. That you've every problem, every heartburn, every totally, headache, dude. Everything that you have to let it go, because that moment जब आप चीजों को let go करते हैं, and I think I have started practicing it. मैं दिन में बैठती हूँ एक जगह अपने कोने में घर में ढूंढती हूँ, especially when the sunlight is coming and there's थोड़ी सी हवा है, मैं बैठ के अपने आप को कहती हूँ it's okay. Every day. Good. I tell myself it's okay. Whatever has happened. Whatever is going to happen will be good. And anything, if anything is not happening the way I want it, it's okay. Because God is making everything else happen. Yeah, totally. I completely wholeheartedly agree. So even better, कि मेरी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, because Allah Mia has a bigger plan for me. And Allah Mia has made my journey so much better by not having me, the power creator of it. यार आप एक बात बताओ, आप और मैं यहाँ बैठ के अभी इतने calmly इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. जो चीजें आप और मैं, मतलब जो आप जिस तरह की आपकी फीलिंग थी और जिस तरह की आप थी आज से जितने अरसा पहले आपके साथ जो भी हुआ, और एक साल पहले हम जनवरी में मिले. हाँ, काफी आई थिंक 1 साल 1.5 साल पहले हम लोग मिले थे हम स्टाइल पर. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, लाइक ये भी तो एक मिरेकल ही है ना अल्लाह की तरफ से, कि आप जो है जिस तरह की आपकी जो भी डिप्रेशन का एक फेज गुजरा, मुझ पे जो गुजरा, for us to go through that and for us to very calmly sit down today and talk about it, things we would not be able to talk about then, we can talk about now. And और उसके ऊपर हम लोग हंस भी सकते हैं, हम मुस्कुरा भी सकते हैं, हम लोग की सोच भी बदल गई है, हम लोग we found a better, more meaningful way of living.
तो ये भी तो एक वही है ना, मिरेकल ही है ना, और क्या है, लाइक मतलब ये क्या है, आप लोगों की सी द प्रॉब्लम इज कि पीपल डोंट सर्च फॉर मिरेकल्स लाइक दे शुड. एवरीथिंग इज अ मिरेकल. गॉड इज गिविंग यू मिरेकल्स हाँ, एवरीवेयर. you're right. Like जरूरी है कि आसमान से तारा टूट के नीचे गिरेगा और वो घर हाँ बनेगा तो पता हाँ चलेगा कि ये मिरेकल है. हाँ. मिरेकल नहीं ये हो. भी है कि आज कोरोना के वक्त पर you and I have a house, a job, या and या so many other people are still living in this world. या. So many deaths have happened this year. So this एब्सोल्युटली. is in itself a huge miracle कि आज हम यहाँ जिंदा बैठे हैं. अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करें हाँ कम है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं तो मैं वही बता रहा हूँ ना, तो एक्सपेक्टेशन आपको रब से ही होनी चाहिए. लोगों से एक्सपेक्टेशन पता है क्या, देखे हम लोगों से ना एक्सपेक्टेशन एक वो भी है, इट्स अनफेयर टू देम आल्सो. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक कि आप you are expecting something from someone is unfair to them also, because they didn't sign up for this. You know what I'm saying? Like what made you think कि अगर मैं ये आपसे चाह रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगा? You know what I'm saying? Like they didn't agree to anything. Yeah. Do something for someone wholeheartedly without expecting anything in return. It's a much better feeling. Like अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं और वो आगे से आपके लिए कुछ करता है, या अगर आप किसी के 5 मिनट बैठ के बात कर लें, do talking to someone for 5 minutes in a day can make them feel amazing. And I feel like मेरी अम्मा कहती हैं कि अगर आपने किसी को बात करने की किसी से कोशिश की है और आपने किसी को मैसेज किया या आपने किसी को फोन किया और अगर किसी ने आपको कॉल बैक नहीं किया या आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो आपको भी उस इंसान, आपको ये सिग्नल्स समझ जाने चाहिए. हाँ. अगर किसी के पास आपके लिए 5 मिनट नहीं है तो इस बात को समझ जाएं और चुप करके दूर हो जाएं. हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. क्योंकि इट्स ओके. और ये छोटे छोटे सिग्नल्स ही होते हैं जिससे आपने अपने आप को सेल्फ लव की तरफ लेके जाना होता है. यू हैव टू मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर योरसेल्फ. या टोटली. आप देखें, द आइडिया ऑफ सेल्फ लव और टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज के जी आपने you have to find meaning. You have to find meaningful things in everything you do. If you're doing something for someone, it's meaningful. It's meaningful to you. It's not, if that person likes it or receives it meaningfully, that's okay. If they don't, that's all right also. It's fine. Just give away love, but at the same time, remember that you have to be able to forgive yourself and love yourself in the process. And I guess ये भी होता है ना कि हम लोग जो है, we don't believe in ourselves as much as we should, dude. You're special to someone. You know what I mean? Like we're all special to each other in some way or the other. Like मतलब मैं कभी कभार सोचता हूँ कि मुझ में कोई खास बात नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है. You know what I mean? बिल्कुल है. आपकी खासियत आपकी एनर्जी है, Dino. It is beautiful. आपकी खासियत भी तो है ना कि you're such a lovely person. You make everybody feel good when they see you. And I think आपकी एनर्जी जो होती है वो एक कमरे में या तो आपके साथ एंटर जब करती है तो या तो आपके साथ खुशियां लेके जाती है या आपके साथ सैडनेस लेके जाती है. तो अपनी वाइब को, अपने आप को हमेशा अंदर से साफ रखें, अपने दिल को लोगों के लिए साफ रखें, क्योंकि उससे आप अपनी less problem में रहेंगे जिंदगी में. I also want to read up some comments, Dino. Everybody's saying Dino is right. And somebody also said that I'm totally connecting with what Dino is saying, which is great. Yeah, dude. Like, I don't know why people don't talk about these things more often. Why do we see everything? You know what? Everything is meaningless. Fame, money, power, all of it is meaningless if love is not at the center of it. Absolutely. You know what I'm saying? Absolutely. It's meaningless. Like, matlab kya hai? It's meaningless. I don't see. I've made money. I've been around the world. I've traveled on good planes and partied and stuff. Like, I don't remember that. I don't. I remember it कि yeah, मैं गया था, but मैं लेकिन मिला किससे था? That's what's meaningful. You know what I mean? मतलब लोग, मैंने किया, मैं किससे मिला, मैं क्या किया, मैंने किसके साथ क्या जोक किया, किसके साथ क्या वक्त गुजारा. Those things are important to me. It's not, and I think what we also, life, jo pressures or the cause to leading to depression or anxiety or panic attacks or
और सैडनेस और फीलफुलनेस, ये सब चीजें जो 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 कैटलिस्ट बनता है इन चीजों का, वो यही बनता है कि हम लोग जो है we're in a rat race, we're running after things which will never satisfy us fully. Money will never satisfy you fully. And the biggest thing You is know? when we go down, we're Yeah, taking none of it. we're taking None none of of it it. with us. Yeah, yeah, absolutely, dude. Like I don't want to like I could, dude, I remember I was I was in America, and I remember I was in a very big mansion which is owned by my chacha, and मुझे याद है मैं उनके साथ बैठा हुआ था, and he was telling me, okay, you've done so much, mashallah, and if you want, we can set you up here, and you can do so much and this and that, and all I could think about how sad I was feeling. You know what I'm saying? Like, merely that's when it hit me. Okay, all the money in the world, or all the success in the world, or all of that stuff would never amount to me not having love in my life. You know what I'm saying? Like, this stuff is meaningless. तो मैं लोगों को हमेशा the point I'm trying to make is कि अपने आप पे काम करें, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को माफ करें. आपसे जो भी गलती हुई, या मैंने गलतियां बहुत की हैं जिंदगी में. I'm not like, मैं कहीं से भी I'm being absolutely serious. मैंने बहुत गलतियां की हैं. So I have learned to forgive myself, because I know that I have the luxury, and mashallah, I have the good luck that I'm a Muslim. I can ask God to forgive me. Alhamdulillah. You know what? I can ask God to forgive me, and God is the only one that I should, worry about to forgive me. So for myself, I have to learn how to forgive myself and to love myself, because if I don't, then then what's the point, really? You know what I mean? What's the point of living a life of just feeling sad all the time? So, and seek help, guys. Honestly, मैं एक बात बताऊं, I want to make this so clear. There's so many kids I speak to. There's so many people I speak to, and that's how me and Zara got to know each other. Is, we hide it. Don't hide it. If you're sad, tell someone you're sad. If you feel like crying, cry. It's okay Yes. to cry. It's fine. It's कोई कुछ नहीं fine to कहेगा. cry. लड़का Whether अगर you're a कोई man or you're a woman, it is okay. मर्द जो है ना, खासतौर से मेरे भाई जो देख रहे हैं, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर लौंडा रो रहा है, कुछ नहीं होता. कुछ भी नहीं होता. मैं सही बता रहा हूँ यार. बल्कि शायद कुछ रोगे नहीं तो होता. कोई लड़की आके पूछ ही ले कि क्या हो रहा है. हाँ, ये भी है. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि Rona is fine, sadness is fine, everything is fine. Just talk about it. Go and talk to someone about it. It's important. I mean, me and Zara are not experts. हम लोग mental health पे कोई experts नहीं हैं. But the reason why I was so excited to do this live with Zara is because I wanted us to talk about our experiences, because there are kids out there who don't talk about it. Who don't know. And who Dino, a don't- lot of people Yeah. think that my work is so easy, and it is so glamorous, and it's full of, I have photographers with me all the time, and I'm all decked up, और मैं तो बस हर वक्त shampooed और salon के बाहर निकलती नहीं हूँ. But in real life, when you have issues like this, you don't even want to get out of your bed. And Yeah, it's okay. And the reason why I'm coming out to talk to you about this, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मैं डीनो या हम जैसे बहुत सारे और अदाकार और एंटरटेनर्स नॉर्मल लोग हैं आपकी तरह. तो अगर हम बात कर सकते हैं इस बारे में, इसको समझ सकते हैं, तो आप भी इस टैबू को तोड़ें, इस स्टीरियोटाइप को तोड़ें, इस चीज से निकलें और अपने आप को समझें कि अल्लाह मियाँ ने मुझे शायद ये जो एक जोल्ट दिया है मेरी लाइफ में, ये इसलिए दिया हो क्योंकि मुझे कुछ अपनी बिगर एग्जिस्टेंस के बारे में कोई बात सोचनी है. मेरा मकसद जिंदगी का क्या है वो सोचना है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और मुझे ऐसा लगता है कि जितने आप सेंसिटिव होते हैं उतने ही ज्यादा आप चीजों को डीपली समझ पाते हैं. तो अगर आप सेंसिटिव हैं तो ये भी अल्लाह मियाँ ने एक आप पे करम ही किया है कि आप इस सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वरना बहुत सारे लोग इस बात को भी नहीं समझते. एंड आई थिंक यहाँ आ रहा है कि
अच्छा किसी ने कहा है, बट अगर कोई आपकी सैडनेस को जो आप डिस्कस करें उस बंदे से वो यूज कर ले और मजाक में ले, फिर क्या किया जाए? उसको कटा दिया जाए बंदे को। बिल्कुल कटा दिया जाए उसको, और बिल्कुल। उसको बेशक टॉक्सिक। फोन करके बता दे कि यार मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम बस अब अपनी जिंदगी में रहो। नहीं बट लाइक ये तो चलो हम कह रहे हैं उस तरह से, बट अगर कोई बंदा आपकी चीज का मजाक उड़ा रहे है, उस तरह से कर रहा है, इज बिकॉज दैट पर्सन प्रॉब्ली but that's the sadly the society, आप इसी सोसाइटी में तो बट रहते आई हैं जहाँ थिंक पे उस हर चीज का सोसाइटी में मजाक फिर है। बेहतर है कि हम उन लोगों से मिलना जुलना छोड़ दे रही नो, बिल्कुल हाँ, वरना तो ऐसा फिर ही है। हम नॉर्मल लोगों से इसी तरह टॉक्सिक, मिलते रहेंगे। हाँ टॉक्सिक टॉक्सिक लोगों को तो कटा दे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। Thank you, Zara, for helping me to come out of my depression. Okay, that is from Khushbu. Well, you know what? I hope, कि guys, कि किसी को कुछ ना कुछ, somebody takes away something from what we're talking about today. That's the आई idea. होप सो, आई You know, होप and I सो। hope, and call your friends, call your family, dude. Ask them if they're okay. You know, call that cousin who you thought was just, sad for no reason. Call up that, that family member who you thought was acting out और आपको पता नहीं है क्यों. सभी को एंड ये भी आई होता है कि थिंक बहुत yeah. also just be extremely nice to everybody. Extremely loving, yeah. आजकल जो वक्त है वो बहुत बुरा है, और आजकल हमारे जो अल्फाज हैं वो किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, और हमारे अल्फाज किसी को भी खुश कर सकते हैं। जैसे हमारी ये बात करने से अगर आप लोगों को फर्क पड़ रहा है, तो उसका मतलब आप लोगों की बहुत सारी बातों की वजह से बड़े और लोगों को फर्क पड़ेगा। तो नहीं, अभी बेहतर है। किसी ने लिखा है दे मेक इट योर वीकनेस। यार देखें, जो लोग आपकी चीज को आपके अगेंस्ट यूज करते हैं, पहले तो आपके दोस्त नहीं है, लेट्स बी दोस्त नहीं रियल, है। दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। ठीक है, कोई अगर आपकी चीज का मजाक उड़ा रहा है, या आपकी प्रॉब्लम का, या आपकी सैडनेस का, आपकी डिप्रेशन को उल्टा लेके आपके मुंह पे रब करे कि जी ओ दिस इज समथिंग, कि तुम बस अटेंशन के लिए ये सब कर रही हो, then those people are not your friends, dude. You need to get rid of these people. This is the idea that we were trying to share, कि toxic लोगों को, ये toxic सराउंडिंग्स को या चीज़ों को छोड़ दें, आप उससे बाहर निकल आए, बिकॉज वो सबसे बड़ा इश्यू होता है कि उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। I mean, I can talk about so many things that upset me when people say those things to me. I'm sure, मतलब ज़ारा से मैं ये पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि when you were going through your panic attacks or your depression phase, what were the things that hurt you the most? What would people say to you, जो would upset you कि यार ये क्या बात हो रही है? I think biggest thing was that everybody thought I was a drama queen. And I was just, I was not getting a hold of myself, and that I needed to make better choices, and that I needed to, like be a smarter person. But my thing was when जब मुझे realize हुआ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब को लग रहा है कि मैं बहुत एक्स्ट्रा हरकत कर रही हूँ, या मैं बहुत एक्टिंग कर रही हूँ, या मैं बहुत वो हो रही हूँ, मैं सबसे दूर हो गई थी। और and it gets very lonely, when you're trying to figure out who you are and where you are mentally. On your own. On your own. It's very lonely. It's not a room full of a lot of people. A lot of people, in fact, don't want to meet you. Yeah. A lot of people, totally. I think, they just realize that it's okay not to be a part of this person's life, क्योंकि ये बोर करता है, ये बोरिंग बातें करता है, ये हंसता नहीं है, ये रोता है, और ये बहुत सैड हो जाता है, तो बहुत सारे लोग आपसे मिलना खुद ही छोड़ देते हैं। Totally. और I completely agree. I think जब मुझे realize होना शुरू हो गया था that I was just like upsetting and boring people, I stopped meeting everybody, and I just met very very few people who were very close to my heart. And Asad, my family, my father, my father-in-law, my mother-in-law, basically my life, my family here in Karachi, मैं बस उनके साथ थी. And I would also want to thank a few of my friends जो मेरे साथ थे उस जर्नी में. बहुत कम दोस्त होते हैं उस जर्नी में, लेकिन थे कुछ, और उन्होंने बड़ा संभाला. एक दफा जब मुझे बहुत मेजर एक एंजाइटी अटैक हुआ, उसमें कुछ दोस्त बिल्कुल साथ आके खड़े हो गए. वो दोस्त बहुत खूबसूरत हैं, और वो दोनों बहुत अच्छे लोग हैं.
अल्लाह में उनको बहुत खुशियां दे, बट ऐसे बहुत सारे और भी लोग थे जो साथ थे, और बहुत सारे थे जो साथ नहीं थे। हम्म, तो जिसने मेरी सेंसिटिविटी को मेरे अगेंस्ट यूज किया, मैंने यही सोचा कि बेहतर है कि आप दूर हो जाएं इस इंसान से। But now that you're better, and I mean, obviously, now that you're better, do you feel that you still want to keep those people away? Like, do you, or when, because now they purposely want to see you more? Absolutely, absolutely. सही है. I don't want any of them to be a part of my life. People who have used me for their good, and people who have used my love and affection for their good, and people who have misunderstood my sensitivity, and people who have, made me feel that I was extra. I don't want them in my life at all. And I think this is, and the reason why I'm saying out loud is because all of you need to understand that anybody who does that to you is not supposed to be a part of your life. They're all supposed to leave your life. हाँ, और जो लोग आपको फिर गिल्टी करते हैं ना, मतलब आपको गिल्टी फील कराते हैं जब आप उनको कटाते हैं कि अरे यार क्या हो गया यार, मेरी वजह से तो नहीं हुआ ना यार, क्या हो गया, मैं हूं ना यार, मैं तो अब हूं यार. मुझे क्योंकि ऐसे भी दोस्त हैं जिनको जब मैंने अपने बुरे वक्त में, जब वो नहीं थे, और जब उसके वक्त के बाद जब मैं उनसे अब नहीं मिलता, या मैं उनको हेलो हाई नहीं करता, या मैं उनसे जो भी नहीं करता, तो वो फिर आपको गिल्टी भी फील कराते हैं. जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आई एम श्योर उनके साथ भी होता होगा कि दोस्त फिर आपको गिल्टी फील कराते हैं और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं. इसको इमोशनल ब्लैकमेल कहेंगे, कि वो आपको आगे से ये कहते हैं and they make you feel like you're the wrong one. तू गलत है. नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में या आपके कोई भी चीज या आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने वाला आपका दोस्त नहीं है. सो प्लीज जो बहन भाई इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा, गाइज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड that your mental health is very important and your mental peace is very important. The reason why we're talking about mental health today is that you have to understand that you have to love yourself first for you to be able to love someone else. अगर आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे तो आपके जो भी आपका पोटेंशियल है ना, ये जो आप कर सकते हैं जिंदगी में, वो आप कभी रीच नहीं कर पाएंगे. ऐसा कोई सीन नहीं है. सो यहाँ पर भी लिखा है कि हमारी बात का जवाब दे. अच्छा, कोई बच्चे हैं, पूछे आप लोग सवाल. अगर आप मुझसे पूछेंगे आपका हेयर कलर क्या है, तो ये तो जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, because this is a session about mental health, not about who did my hair color or what. I do want to know one thing though. I want to know one thing. Like, you know how there's a lot of pressure on you to look good, No, I'm being serious. Like, I have lost hope. I don't care about looking good anymore. I don't care. मुझे तो फर्क नहीं पड़ता. मैं जैसा हूँ, I'm fishing for a compliment. No, I'm kidding. मैं मजाक कर रहा हूँ. You are very good looking, Dino. Thank you. That's very sweet. Thank you. ये चीज मैं लूप पे लगा दूंगा अपने Instagram पे ना. हाँ, ज़ारा ने कहा है कि I'm very good looking. But being an actress, because you're in the public eye, because you are pressured to look good, because you're pressured to dress up well, because you're pressured to stick, stuff on your social media all the time and keep putting stuff up on all the time. How does that kind of pressure plays on your mental health? I don't pay heed to any of it. Really? I don't care how I look. What I care about is the fact that how many cells are active in my brain, and what am I feeding my subconscious mind. That's all. क्योंकि मैं कभी कभार सोचता हूँ जैसे I used to be very concerned about the fact कि फलाना क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे तैयार होना चाहिए, मुझे, oh my God, मेरे pimples, इनका मैं क्या. Not anymore, Dino, because I feel like we need to focus more on the craft that we have, which is acting. And secondly, if anything, we need to focus on the mental well-being and what I feed myself. I need to look good here in my head. Totally. And then I will obviously glow. Of course. But if I'm just putting on some concealer, I'm not going to conceal my problems. Very good. That's very true. Yeah. Okay. यही डिस्कस कर रहे थे कि सोशल मीडिया ने कितना बड़ा पार्ट प्ले किया इन पुटिंग पीपल डाउन एंड
getting people to feel the pressure of anxiety and depression and जैसे अभी आपने एक stat भी बताया था कि how social media is one of the leading causes for people to commit suicide. Yes, and social media एक ऐसा झूठ है जो constantly हमारे सामने आ जाता है और इतना easily accessible है हमारी जिंदगियों में, और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उस झूठ को अपनी असल लाइफ से कैसे डिफरेंशिएट करना है, अलग कैसे करना है। और वो करना बहुत जरूरी है अब। नहीं, it's true and people take a lot of pressure because of that. Stop spread hate in comments. Okay, हाँ जी, जो लोग hate messages कर रहे हैं comments के अंदर, guys come on please, really, मतलब एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, I want to talk about this trolling and cyberbullying जो लोग करते हैं ना, ये क्या concept है? I want to ask, what is this concept, guys? क्या gratification आपको मिल रही है सब करके? मुझे समझ नहीं आता, मतलब मैं जो हूँ अजीब हो गया हूँ ये सब देख के। I think वो gratification यही है कि बहुत सारी हमारी सोसाइटी में हमारी इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो चुकी है बहुत सारे रीजंस की वजह से, एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कि अगर कोई अच्छा कर रहा है उसकी बात को भी बुरा कहो, उसकी कमेंट्स में जाके बुरा लिखो, उसको बुरा कहो, ताकि कहीं ना कहीं से उसको डिमीन करके उसको नीचे दबा दिया जाए। तो ये भी एक मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज द नेक्स्ट बिग पेंडेमिक ऑफ द वर्ल्ड, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा। और लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ भी ऑनलाइन हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं है दैट दे आर गोइंग थ्रू दिस। मुझे उन पे तरस आता है, यहाँ पे इतने सारे गंदे कमेंट्स आए हैं और किसी ने एक बड़ा अच्छा मैसेज भेजा है, किसी ने एक मैसेज भेजा है, दिस इज फ्रॉम निस्मा, जो कह रही है कि how do you ignore toxic people if they are part of your family? You need to address that to your mother. Your same, mother I would do the same. Yeah, has gotten absolutely. you out of her belly. She loves you more than anybody else, and she's going to be the truest to you, if there's a word as truest. She's just going to be the most true to you ever. So just tell her that, if any khala or anybody is or a puppo ya cousin ya anybody is getting on your way to that problem, and your mother will guide you through. Absolutely. अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं भाई, अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं। एक मैसेज आया है, दिस इज फ्रॉम मोड हनीफ, आई थिंक मोड हनीफ, उन्होंने कहा यू कांट बी नाइस टू एवरीवन, लोग कच्चा चबा जाएंगे, बाय बीइंग नाइस इज अ वीकनेस, it's a joking matter, you're going to be chewed up and paired out. Dude, you know what, that's a risk you'll have to take. This whole thing of, हम लोगों का मसला ये है, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं हूँ, मैं हर किसी के साथ अच्छा हूँ, चाहे वो बंदा मुझे पसंद करे ना करे। अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि मैं इस बंदे के साथ अच्छा होऊंगा, लेकिन ये बंदा जो है मेरी बेइज्जती कर दे या मेरा मजाक उड़ा दे या मुझे मेरी इस चीज का फायदा उठा जाएगा, ये कर लेगा, पहली बात तो कोई आपके साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता unless you allow them to do it. Let's be real. आप चाहे आप कोई भी हो, आप you have the power to allow someone to behave a certain way with you or not. अगर अगला आपकी नाइसनेस को वीकनेस ले रहा है तो ये उसकी गलती है और उसकी खामी आपकी नहीं है। You are being nice because you're a nice person. You are being good because you're a good person. You are spreading love in the world because आपके दिल में प्यार है, तो आप आगे दुनिया को। And that's what your parents have taught you, and that's your upbringing, and that's part of your body, that's part of your background. So if जो आप कर रहे हैं किसी के साथ, जरूरी नहीं है वो आपके साथ अगला उतना ही अच्छा हो, बट अगर कोई अच्छा नहीं है तो वो अपनी फैमिली, अपनी जिंदगी, अपनी तमीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। Absolutely. तो अगर कोई आपको कच्चा चबा जाए या आपको कोई इस तरह का आपकी स्वीटनेस पे, आपकी नाइसनेस पे आपको दुख पहुंचाए, तो आप ये बात भी समझ जाएं कि आप, स्वीटनेस का मतलब सिर्फ यही है कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है। स्वीटनेस का मतलब ये नहीं है कि फिर आप उसके लिए वो फेवर्स करें जो आप करते थे। एक दफा अगर आप किसी चीज से गुजर चुके हैं तो अक्लमंद इंसान वही होता है जो अपनी गलती से सीखे, जो अपने आप को फिर डोरमैट ना बनने दे, क्योंकि अगर फिर आप अपने आप को दोबारा डोरमैट बनने देंगे तो फिर पीपल विल वॉक ओवर यू। बिल्कुल। और वलीद ने भी एक बात बोली कि वी शुड डिफाइन आवर बाउंड्री लिमिट्स, मतलब आपको यू हैव टू हैव अ सर्टेन, देखिए
गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट वाली तो बात है कि आप किसी को जितनी रिस्पेक्ट देंगे वो उतनी आपको देगा, और ये सारी चीजें ठीक है। हर चीज का एक बैलेंस होता है, बाउंड्री लिमिट आपने बना के रखनी है। everyone should be able to treat you the way you would treat them or vice versa. ये नहीं होना चाहिए कि जी आप, जैसे ज़ारा ने कहा कि आप स्वीटनेस का एक हद तक आप करेंगे ना, मतलब ऐसा थोड़ी कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ योर वे जाके किसी के साथ कुछ करें, unless that person absolutely deserves it. Wow, thank you so much for conducting think productive sessions on mental health. You know, I'm glad to hear that you guys like it, dude. You know what? The idea is for you guys to start talking about it amongst yourselves. Please, आप लोग आपस में एक दूसरे से इस बारे में बात करें, बहुत जरूरी है. What if your parents are toxic? How to draw boundaries with them? Now, this is a very important and a very difficult and tricky question. It's a very tricky question. I don't know, because me and Zara, we were lucky enough that we have, you know, family members who are so loving and care. Yeah, family members. But that's true. There are people out there who have parents, sadly, or people in their family who are toxic and who are, you know, yeah, depends, man. It's each to his own. अगर आपका तरीका, you know, अगर कोई आपके साथ toxic है, sadly, अगर आपके माँ बाप आपके साथ toxic हैं, या वो आपकी बात को समझ नहीं रहे, या वो आप पे pressure डाल रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं आपके साथ, I would say, if you can't find internal support, then find external support. Yeah. Talk to anyone. Because yeah. Either inside or outside, you have to find that support to lead on in your life. You know, find a friend, find an uncle, an aunt, कोई मामू, कोई पुप्पी, कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके खानदान में, या खानदान में भी ना हो, अगर कोई आपका extended कोई family member है, या कोई family friend है, या कोई दोस्त है, या कोई ऐसा सीनियर है जो आपके माँ बाप से उनके लेवल पे बात कर सके, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर ढूंढे who is able to talk to your parents and explain to them what you're going through, you know. One more thing, यहाँ पे किसी ने कहा, if anybody who is afraid of taking medicine and don't want to go to psychiatrist even in problem, what should we do for them? सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ, दवाई लेने से किसी की तबीयत खराब नहीं होती. इफ एनीथिंग आपकी तबीयत उससे बेहतर होती है, तो प्लीज दवाई का इस्तेमाल जरूरी करें. अगर आपको डायग्नोज कर दिया है मेंटल हेल्थ की किसी भी डिसऑर्डर से, बाइपोलर हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, इंसोम्निया हो, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, अगर आपको किसी भी डिसऑर्डर से एड्रेस किया है आपके साइकियाट्रिस्ट ने, आपके साइकोलॉजिस्ट ने, तो प्लीज आप उसके लिए दवाई लें. आफ्टर दैट, most important part is just some time. Asad is here. He's like, Assalamualaikum, Asad. Hello. Hey. What's up, dude? How are you? What's up, man? How are you? I'm good. He would just come in the middle of my work and stand, and then. नहीं, it's okay. ये मेरा भाई, ये बाल नजर आ रहे मेरे भाई के. यार दाढ़ी आपने हटाई है? दाढ़ी है अभी भी? दाढ़ी है भाई, मुलाकात करो डिनो यार. I know, bro. I so want to see you, dude. We need to have a discussion. Boys की अपनी एक डिस्कशन होनी चाहिए. This child who मैं अभी तुम्हें ना, ये तुम फ्री हो फिर कॉल करता हूँ. Done, bro. Please. Done हो गया. I'm so it's sorry. Okay. Everybody. No, it's fine. क्या मतलब? We love Asad. No, because अभी मैं जिनसे बात की थी, वो बेचारे इतना जरूरी सवाल पूछ रहे थे. नहीं, but नहीं, you're right. So अगर मेडिसिन लेनी है तो it's okay, right? Yes. For depression and anxiety. ठीक है. और साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, डरना नहीं है इस चीज से कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा. You have to go and get yourself. अकेले ना जाएं, आप किसी के साथ चले जाएं. अकेले ना जाएं. खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे और बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, you know, अपेंडिक्स होता है, और किस किस लेवल की बीमारियां होती हैं, आप उसके लिए भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं. तो ये उतना ही जरूरी है. हमारा जहन हमारी पूरी बॉडी को रन कर रहा है. बिल्कुल. तो हमारे पास बहुत जरूरी है. एक मैसेज आया है, किसी ने कहा है, even most of psychiatrists don't take their patients seriously. They take them as a case sometimes and refer to them to internees. Okay, I want to talk about this now. जब आप कोई देखें, अगर आपको कोई भी किस्म का इशू है इस तरह का मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस इशू है. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ थेरेपिस्ट, I spoke to so many people before I said yes to one. The idea is कि आप जो है research करें. देखिए, हर चीज की research होती है.
अच्छे लोग हैं मार्केट में, अच्छे लोग हैं जो वाकई जेन्युइनली लोगों की मदद करना चाहते हैं। हमारी एक कॉमन दोस्त है एक्चुअली, ज़ारा, यू नो हर, सना Yes, ज़हरा, यू नो yes, शी इज अ yes. मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। She's इस a तरह के बहुत, brilliant woman, brilliant शी इज अ woman. ब्रिलियंट वुमन, यू नो। सना ज़हरा ऐसी हैं, फिर एक और मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक फ्री Asma क्लिनिक है, Paul. असमा पॉल है। there's a free clinic in near दो तलवार here in Clifton, कराची में, जो कि फ्री है। आप वहाँ पे फ्री जाके इलाज करवा सकते हैं। मेरी उन दोनों से मुलाकात भी हुई है जो लोग उसको रन करते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। आइडिया है कि अगर आप किसी भी किस्म के साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट या किसी भी मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट से मिलना चाहें तो रिसर्च जरूर करें, because I spoke to it maybe 10-11 people before I went and found the Yeah. person that works for me. क्योंकि और ये जरूरी नहीं कि जो जो इंसान डीनो की प्रॉब्लम्स के लिए बेहतर है वो मेरी प्रॉब्लम्स के लिए भी बेहतर हो। तो आपने खुद अपने आप के लिए डील करना कि कौन सा बेहतर है। यहाँ पे एक सवाल आया कि व्हाट इफ योर पेरेंट्स आर किलिंग योर ड्रीम्स एंड दे आर फोर्सिंग यू इफ यू डोंट वांट टू डू समथिंग। Like I said again, you need to go and stand in front of whoever is coming in front of your mental health, between your mental health and you. You have to talk to them. You Yeah. have to talk to them. आपने, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप लड़ाई करें, घर में चीजें तोड़े, बट मैं रिपीटेडली बार बार लोगों को समझाती हूँ कि बहुत बड़े बड़े मुल्कों की प्रॉब्लम्स एक दूसरे से डिस्कस करके खत्म हो रहे हैं। Until unless अल्लाह माफी दे आपके घर में कोई ऐसा आदमी या औरत नहीं है जो is abusing you physically, an argument between parents and children is okay and is normal. Happens in every house. हमारे घरों में भी होता है, सब में होता है, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू एड्रेस जरूर करें। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एड्रेस नहीं करते, दैट इज व्हेन इट ऑल स्टार्ट्स टू क्रीप अप ऑन यू। एक मैसेज आया, दिस इज फ्रॉम Marumi, who says how to move on from the past, please tell. I want to take Yes. this moment to tell Marumi, I hope I'm pronouncing your name right. Letting go of the past will never be easy. I'm not going to say कि आप सब भूल जाएंगी और सब खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से और सारा कुछ हो जाएगा। अगर कुछ होगा तो वो ये जरूर होगा कि पास्ट की वजह से आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस अच्छे भी आएंगे और कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि शायद इतने अच्छे ना भी हो, पर आपने कोशिश करनी है कि अच्छे चेंजेस आए। बट द पास्ट फॉर मी, जैसे माई problem which I'm still facing till this day is that I have massive trust issues. Like I can't even tell people. Like people ask me all the time that, you know, dude, why aren't you that social, or why aren't you that you know, you never talk about your relationships, you never talk about you don't talk about if you like someone or anything. Is because the one thing that I can take away from my previous experience is that I have trust issues. And not that I can't get over these trust issues, लेकिन ये है कि वो एक चीज जो पास्ट में हुई उससे अफेक्ट मेरे फ्यूचर में हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी वजह से मेरे में आगे मैं उसको बेहतर नहीं कर सकता। I can work on it. लेकिन ये भी तो हो सकता है ना Dino, that you take a moment, like I said, you take a moment with yourself and you say that it's okay. Yeah, of to course. let go. It is okay. And but you know what it is though, dude? I mean, the best way to move on from the past is to accept that it happened. Yes. Try to look for the good things from the past also. We always look at the bad things. I'm sure there must have been good moments too. Look at the good moments. Think of it as a good experience. And just to move also on. accept that whatever or whoever did whatever that they did, in their mind and in that capacity, they were correct. हाँ, मतलब उनके हिसाब से वो सही था। हाँ, वो अपनी जगह ठीक थे। And it's okay to be, you know, disregarded by somebody. It's okay. It is part of the journey, of the bigger journey. Totally, I completely agree with that. Don't अपने आप को देखें, अपने आप को माफ करें, अपने आप को प्यार करें। जो भी कुछ हुआ होना था, लेकिन आगे जो होगा वो आपके हाथ में। यू नो, आगे जो फ्यूचर में आप करेंगे या नहीं करेंगे, या जो होगा या नहीं होगा, उसके बारे में सोचें, बिकॉज दैट इज समथिंग जो आप
आप कंट्रोल कर सकते हैं. जो पास्ट में हो गया वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. You can't change it. So just live a good life now. That is the best thing you can do for yourself. हमारे पास messages और भी आ रहे हैं. Okay, messages बहुत पीछे चले गए. Wow. Dino, I think we need to, because मेरे phone की battery बिल्कुल dead हो गई. Oh, हाँ, same. Switch off. So how about I just in the end thank you for this amazing session and this for this enlightenment and for this energy that you've transferred for your energy into my life and in my house. No, yaar. I mean, I'm so fortunate to have connected with you. You're an absolute beautiful person. And you deserve to be happy, dude. You're a lovely person. I honestly, you deserve to be happy. Thank you, dude. That's, honestly, you're a wonderful person. You're very cool. And I'm very happy that you are doing this, that you're talking to people about this, because I know what it feels like to be alone. I know what it feels like when I was alone and nobody was understanding what I was saying. You know what I'm saying? I'm sure you do as well. There's a point के आप अकेले होते हैं, रो रहे होते हैं, तकलीफ में होते हैं, किसी को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है और आप किसी को समझा भी नहीं पाते. लेकिन अगर आप इस चीज से गुजर जाएं, जैसे आप और मैं गुजरे हैं, तो आई थिंक कि हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें कोई ऐसा बंदा नजर आए या कोई बंदी नजर आए, तो हम उसको बोलें कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा, आपको मदद मिल जाएगी, आपको बस थोड़ा सा सब्र करना है. So thank you so much for doing this session, dude, with me. I had a wonderful time. Thank you, and everybody who is watching this. अभी हम ये live session save भी कर देंगे. You guys can watch it again, and inshallah, hopefully, I'm going to be talking to other people about all of this too. So stay tuned. And if you need help, please send us your messages, dude. If you need help of any kind, कोई आपको advice चाहिए हो कि किससे बात करनी है, क्या करनी है, क्या आप कर सकते हैं, अगर कोई भी help चाहिए हो, guys, just send me a DM, or I'm sure Zara को भी आप DM कर सकते हैं. Yes. Thank you so much, Dino. Take care and good night and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bye.